am Jitendra Singh. I welcome you to Read My Story, where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today, I have with me Dr. Harish Rawat. He has done PhD in alternative medicine, Masters in pharmaceutical biotech, Bachelor's in pharmacy. He has also published a research paper on yoga, how Sudarshan Kriya helps to reduce the habit of smoking and motivate to quit smoking. International Journal of Pharmaceutical Science. So he has also authored two books, which is Laughter Therapy for Depression and The Magic of Laughter in Positive Affirmation. So his laughter yoga sessions are covered by various media platforms such as DD Sports, National TV, Anjan TV, National TV, 10 News, MS TV, G News, Nav Bharat Times, Times of India, Hindustan Times, News 18 Hindi, Khabardar TV, Viral India, Kalki News, and Delhi Darpan News channels, to name some of them. He has also intense passion to connect with people and creating opportunities for inner peace and global peace. Today, he will be discussing with us about his life journey. So let us hear from him. Welcome, Dr. Rawat. The platform is open, and now over to you. Laughter getting everyone. Hope you all are happy and healthy. What and wonderful start for the session. Yes. So welcome again. First thing I'd like to know from you is how did your past life has affected the person who you are and what you wanted to be in your life? Isn't before starting session, can we do 3 times Om? Sure. Yes. Okay. Just close your eyes, back straight, take a long deep breath in and let go. One more deep breath in and let go. Take a breath for Om. Feel the breath, every incoming breath, energize yourself, every outgoing breath, relax your body and mind. Slowly and gradually, open your eyes. Wonderful. So we are going to start with a positive note. Wonderful. Right. Yeah. कहते हैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कुछ मीठा हो जाना चाहिए और इन अवर केस वी कैन लर्न फ्रॉम गॉड, राइट? वी कैन टेक Yes. ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. Correct. Sure. So Yes. the first question from you is how did your past life has affected the person who you are and what you wanted to be in your life? जैसे सभी, मैं हिंदी बोलूं चलेगा ना? Yes, yes, absolutely. हाँ, थैंक यू. क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत अच्छे निकलते हैं जब हिंदी में बात करते हैं तो Right. तो सभी बच्चों का जो हम बचपन में होते हैं, हमारा सपना होता है कि हम कुछ बड़ा बने, राइट? कुछ बड़ा लाइफ में हम कुछ बड़ा करें. तो हम 3 भाई हैं और 1 बहन है और सबसे छोटा भाई मैं हूँ. Wow. तो बड़े भाई भी अच्छे और पापा मेरे दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं. तो Okay. घर में एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन था, पर मैं जो था पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, कॉमन था, मतलब ना अच्छा ना बुरा. और जो मेरा ड्रीम था वो था एक एक्टर बनने का. कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक्टर की एक क्वालिटीज थी, राइट? और मेरा बड़ा बचपन से एक सपना था कि मैं एक्टर बनूं, एक्टिंग करूं. और मैंने इसलिए थिएटर भी किया, स्कूल्स में, कॉलेजेस में थिएटर भी किया, काफी थिएटर किया और कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया. Wow. पर ये सपना मेरा पूरा नहीं हो सका क्योंकि जब हम बच्चे थे, जब हम 11th 12th पे थे, तो 1990 की बात होगी उस टाइम पे. तो उस टाइम पे इतना अच्छा स्कोप नहीं था. अगर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की तो मेरे पेरेंट्स कहते थे एक्टिंग में क्या होगा भाई, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, हमें तो कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा जिससे हमारा लाइफ, हमें जॉब अच्छी मिले, लोग कह सकें कि आपका लड़का इंजीनियर है, आपका लड़का डॉक्टर है, आपका लड़का फार्मासिस्ट है. कुछ भी एक ऐसी प्रोफेशन चुने जिससे आपकी लाइफ और आपकी जो सोशल स्टेटस है वो मेंटेन हो. Correct. तो वो थिएटर का सपना मेरा अधूरा ही रह गया. पर कहते कहीं ना कहीं वो अंकुर आपकी लाइफ में हमेशा फूटते रहते हैं, राइट? True. तो स्कूल में थिएटर किया, कॉलेज में थिएटर किया, तो स्कूल में भी नंबर इतने 12th में नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, राइट? तो कहीं भी, और दिल्ली में नंबर लाना, मतलब जो कॉलेज में एडमिशन मिलता है नंबर बेसिस में ही एडमिशन मिलता है. Correct. You have to have good grades. तो इतने अच्छे नंबर नहीं थे कि हमें
हमें नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में एडमिशन मिले। तो उस टाइम पे हमने कहा नहीं, कॉलेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ एक साल मस्ती करनी है। राइट। क्योंकि सबका सपना होता है कि एक कॉलेज में जाके वो लाइफ जी सके। जो सभी एक 12th स्कूल का स्टूडेंट होता है, उसकी लाइफ में हमें ड्रीम रहता है कि कॉलेज जाएंगे, अपने स्कूल ड्रेस से छुटकारा मिल जाएगा। तो कहीं भी हमें एडमिशन नहीं मिला, तो हमने अपना एक कॉलेज था, उसमें हमने इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो बॉयज कॉलेज था। Cool. पर हमने जो कॉलेज लाइफ थी उस एक साल में नॉर्थ कैंपस से लेके साउथ कैंपस, जितने भी 30 to 32 कॉलेज थे, जितने भी उनके फेस्ट होते थे, सारे अटेंड किए, सारे डांस पार्टी, सब मस्ती, एक साल में पूरी मस्ती कर डाली जो भी हम करना चाहते। राइट। उसका रिजल्ट ये रहा कि हम फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। राइट। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपना था कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने। वो वहां से प्रेशर आए जा रहा था। तो पापा ने देहरादून में मेरा एडमिशन करा दिया, बैचलर इन फार्मेसी। 4 साल का कोर्स था। लोगों ने बड़े ताने दिए पापा को, किस गधे पर पैसा लगा रहे, क्योंकि उस टाइम पे वो पेड सीट थी, मतलब फ्री सीट नहीं, गवर्नमेंट सीट नहीं थी, पेड सीट थी। तो पापा ने पैसा देकर मेरा एडमिशन वहां करवा दिया। करेक्ट। और लोगों ने बोला कि किस गधे पर आप पैसा लगा। तो वो वहां से थोड़ा लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। पर जब स्कूल 12th से लेकर कॉलेज में हमने इतनी सारी आदतें, नेगेटिव आदतें पकड़ ली थी, जिसने हमें वहां पर बहुत मुश्किल कर दी। जैसे मैं आई एम चेन स्मोकर इन कॉलेज लाइफ। मैं 40 to 45 सिगरेट्स पर डे पीना स्टार्ट कर देता। फार्मेसी में थे तो हमें ड्रग्स की पता लग गया, कौन सी ड्रग्स से क्या इफेक्ट होते हैं, कौन सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करती है, डायजेपाम क्या होती है, स्पाम क्या होती है। जितनी भी सिडेटिव्स थे वो हमें पता लग गए, तो उनका भी हम कहीं ना कहीं मिस यूज करने लगे थे। Okay. तो एक सपना था थिएटर में जाने का, एक एक्टर बनने का, पर लाइफ कहीं और ले गई। Right. जी। So, like that was kind of your journey from your dream towards a different type of thing altogether. So that was you did like studies you did pharma and then biotech. Then you also did PhD as well. Wonderful. So if I talk about your passion, what are the things you are passionate about in your life? My first love is acting, theater, acting, and second, जिसके कहते हैं एक तो होता है प्यार, जिसको आप लव करते हैं, और सेकंड होता है वाइफ। Now, wife is my laughter. Yoga is my wife now, right now. जिसने मेरी लाइफ में चेंज किया, मैं चाहता हूँ वो सबकी लाइफ में चेंज। तो laughter yoga is my passion right now. Laughter yoga is my first and last passion for now. अगर कुछ भी, I'm working in IT company right now. Currently working from last 15 years. I'm working in IT company. ठीक है, तो मुझे पता कितना स्ट्रेस वहाँ पर होता है, कितना स्ट्रेस होता है। लाफ्टर योगा ने मुझे इतना हेल्प किया है। तो जो मुझे मिला है, जो एक अल्कोहलिक, जो एक स्मोकर, चेन स्मोकर, जो जॉब नहीं कर पा रहा था इंसान, वो लाइफ में लोगों की लाइफ पे चेंज कर रहा है। अब तक मैं 60,000 लोगों को लाफ्टर थेरेपी दे चुका हूँ। मेरी लाफ्टर थेरेपी जर्मनी, यूएस, रशिया, डेनमार्क, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, इटली, ग्रीस, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं लाफ्टर थेरेपी करा चुका हूँ, और जो मेरे कोर्सेज ले रहे हैं। That is so awesome. Wonderful. और यहाँ तक दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो मैंने देखा हुआ है, उनका स्ट्रेस घर पे देखा हुआ है। तो उनको दासना जेल पे मैंने अपने सेशंस लिए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, जहाँ स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रेस रिलीविंग की, वहाँ मेरे सेशन कराए गए हैं। That is awesome. Awesome. जी। Wonderful. So, your look today is also really apple for our session today. It's all about laughter therapy. So we would be talking about that also further. So next thing I'd like to know from you is about your work and experiences after your studies. How you got into your career, what all you did so far, how you got into laughter therapy, when you started it actually, and how you got into writing as well. मैंने बताया ना, जब मैं कॉलेज में था तो मैं हैवी अल्कोहलिक, हैवी स्मोकर हो गया। लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रही थी। राइट। तो
मैं 7 साल 8 साल देहरादून में रहा, अपना मास्टर्स कंप्लीट वहां से किया। उसके बाद मैं दिल्ली वापस अपने घर आ गया। तो घर पे एक वही पापा जी का डंडा तो वो जो तालमेल था लाइफ का, वो मैं कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रहा था, बना नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे अब अल्कोहल की आदत लगी थी, मुझे अब स्मोकिंग की आदत लगी, तो वो सारी चीजें अब घर पे नहीं मिल पा रही थी। कई सारे मैंने लाइफ में इंटरव्यूज दिए, तो इंटरव्यूज भी मेरे क्रैक नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम आप वहां लगा रहे हो तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। तो मेरे को जॉब में इंटरव्यूज नहीं मिल रहे थे। अब इतना हम स्मोकिंग कर चुके थे, इतने अल्कोहल हम कंजप्शन कर चुके थे, कहीं ना कहीं हेल्थ इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया। तो लीवर में स्वेलिंग आ गई थी और कहीं ज्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगी थी। तो मैं कई बार हॉस्पिटलाइज तक हो चुका था। तो एक जॉब मुझे मिल गई थी फरीदाबाद में, एक हॉस्पिटल में क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में मैं जॉब कर रहा था, पर वहां पर भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। जो मुझे देना था वहां पे मैं वो दे नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जॉब इम्पैक्ट होने लगी। कहीं मेरी छुट्टियां हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मैं जो मुझे रिजल्ट देने चाहिए थे, आउटपुट देना चाहिए, तो मैं वो आउटपुट नहीं दे पा। तो ये सारी प्रॉब्लम it was because of two things. First is the kind of craving for alcohol and smoking, and second was health issues also. Right. Correct. So after that, like, how it went? Just a minute. We can do one thing. Very good. Very good. Yeah. Yeah. Right. Yes. Yeah. तो उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि आप योगा, आप लाफ्टर योगा, आप मेडिटेशन, आप इनको चूज करो, तो ये आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आ सकते हैं। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयों में डाल दिया, कई दवाइयां लेने लगा। तो मैं क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में था, मुझे पता है दवाइयों के कितने साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो साइड इफेक्ट्स भी आने लगे थे। तो अब कुछ ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी चाहिए थी जो मेरी फिजिकल और मेंटल लाइफ को चेंज कर सके। शादी की एज हो रही थी, शादी भी नहीं हो पाई थी इस कारण से कि आपका अगर लड़का अल्कोहलिक है या किसी नेगेटिव उसमें जुड़ा हुआ है, तो कोई भी अपनी लड़की देना पसंद नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आप सोशल उसमें भी कटे जा रहे थे, आप सोशली भी कटे जा रहे थे लोगों से। तो आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों फेसेस में आप कटे जा रहे थे। तो फिर 2016 में मैंने योगा का कोर्स किया, एक योगा का एक सेमिनार अटेंड किया, वहां पे मैंने योगा सीखा, बेसिक योगा सीखा। और वो जो कि मैं नाम ले सकता हूँ, हाँ, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी के यहाँ से बेसिक जो कोर्स होता है हैप्पीनेस कोर्स, वो किया मैंने। और उस कोर्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वहां से मुझे वो जो किक मिल रही थी अल्कोहल की, स्मोकिंग की, वो किक मुझे अब योगा और मेडिटेशन से मिलना स्टार्ट हो गया। और स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे मैं अपना शिफ्ट करता गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट करता गया। जो किक में जो वहां मिल रही थी, अब मुझे वो किक यहाँ मिल जाए। जब आपने अंधकार देखा हो, तो उजाले की एक किरण ही आपके लिए काफी होती है। That is really wonderful thought. करेक्ट। और वहां से मेरा लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं कहीं नहीं रुका, मैंने एडवांस कोर्स किए, जितने भी कोर्स थे सारे कर डाले। मैं 2009 में जाके मैं टीचर बन गया। ओके। ये 2006 की बात है जब मैंने कोर्स किया, नॉट 2016, 2006 की बात है। आई एम सो सॉरी। ओके ओके। 2009 में मैं टीचर बन गया, योगा टीचर बन गया, और मैंने लोगों को योगा करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे योग, मैं स्लम्स में जा रहा हूँ, एनजीओ में जा रहा हूँ, डिफरेंट प्लेसेस में आके योगा कराने लगा, लोगों को मेडिटेशन कराने लगा। पर मैं देख रहा था कहीं ना कहीं यूथ, मेरे जैसा यूथ जो है, वो योगा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ फ्लेवर्ड योगा, कुछ फ्लेवर दिया जाए उनको, जिससे वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो 2015 के आसपास की बात है कि हमने ये लाफ्टर थेरेपी को इंड्यूस किया लोगों के ऊपर। हमने ट्राई किया कि कैसे हम लाफ्टर योगा स्टार्ट कर सकते हैं, लाफ्टर थेरेपी दे सकते हैं। तो उसके रिजल्ट मैंने यूथ पे देखे तो बहुत ही अच्छे आ रहे। मैं कहता हूँ यूथ को एक बार कनेक्ट कर लो अपने साथ। अब लाफ्टर योगा से मैंने कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने योगा भी कराया, मेडिटेशन कराया, तो वो कनेक्ट हो गए। एक बार कनेक्ट हो जाएंगे तो जो आप कराओगे वो अच्छे से करेंगे। करेक्ट। तो ऐसे करके फिर मैंने यूथ को, एनजीओस को, कॉलेजेस में जा जाके डिफरेंट प्लेसेस में, तो अब तक मैं 60,000 लोगों को लाफ्टर थेरेपी दे चुका हूँ। स्कूल, कॉलेजेस, स्लम, एनजीओस, डिफरेंट एनजीओस, कॉर्पोरेट। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होता है कॉर्पोरेट में होता है। मैं खुद कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि वहां पर कितना स्ट्रेस हो रहा है। आपकी वर्क लाइफ
कितनी हेल होती जा रही है, स्लोली एंड स्लोली हेल होती जा रही है। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम फील कर रहे हैं। और आप किसी भी कॉर्पोरेट वाले से बात कर लो। Correct. I also being a banker for these many years, so I have seen that transition from like banking also. When I joined banking, the kind of work environment and everything was really wonderful. But these days, if we see, the stress, anxiety, tension are at utmost level. Like it is huge. हाँ, मतलब टीम मेंबर से लेकर और ऊपर तक हाई लेवल तक, वो हाई लेवल सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। Correct. हमें लगता है कि हाई लेवल वाला बंदा कुछ काम नहीं कर रहा है, कम स्ट्रेस है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस लेके बैठा है वो वही ऊपर वाला बंदा लेके बैठा है। Correct. Agree. So, if we talk about the things which you are like looking for further from now, like your vision, mission, and goal for next 5 to 10 years, what all those things would be there as part of your vision, mission, and goal? My mission is depression free world. Wow. और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने 2018 में, उससे पहले हम छोटे छोटे योगा सेशन ले रहे थे, लाफ्टर योगा सेशन ले रहे थे। तो जो मेरा ये मैसेज था डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड का, ये स्प्रेड नहीं हो पा रहा पूरे। तो हमने क्या सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा धमाका किया जाए जिससे ये पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज स्प्रेड हो जाए। तो हमने 2018 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक अटेम्प्ट किया, जो था लॉन्गेस्ट लाफ्टर योगा मैराथन, जिसमें हम 36 आवर 2 मिनट्स तक कंटिन्यूस हंसते रहे। Wow. 36 hours is huge. Yes, 36 आवर 2 मिनट्स तक हम कंटिन्यूस हंसते रहे, सिर्फ अपने मैसेज को वर्ल्ड वाइड तक पहुंचाने के लिए। Wow. ये जो हमारा मैसेज है पूरे वर्ल्ड में कन्वे हो जाए, लोग हमें जानने लगे, हमारे मैसेज को पहुंच जाए और लोग 10 से 15 मिनट रोज हंसने लग जाए। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। Yes, indeed. So like 2018 since now, like you have been conducting so many events, so many like campaigns all around. So how is the response now? नहीं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोग हंसना चाहते हैं पर हंस नहीं पाते। अभी रिसेंटली मैं एक लेडीज का एक वो था ग्रुप था, उनके लिए मैंने सेशन किया। तो उनका जो स्टिग्मा था, वो कह रहे हम हंसना चाहते हैं पर अभी हम घर पे हम हंस नहीं पा रहे। आप जब कितनी बड़ी बात है ना, हम अपने घर में ही नहीं हंस पा रहे हैं तो हम बाहर हंसने की क्या सोच सकते हैं। मेरे हस्बैंड है या मेरे फैमिली मेंबर है, हम हंस नहीं पा रहे। सर हमें बहुत अच्छा सेशन लग रहा है, मजा आ रहा है, पर अभी हम आपके सामने ना अभी हंस नहीं पाएंगे जूम में। राइट। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीजें अभी सही होनी बाकी हैं। करेक्ट। जहाँ हमें हंसने के लिए सोचना ना पड़े कि हमारा साथ वाला बंदा क्या कहे। ट्रू। हम अपने फैमिली या अपना हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। Correct. This is the biggest challenge everyone has. Like when we think of what others people would think, that is the worst challenge we see in front of all of us. We need to at least like think in a way what actually we want to have in our life. Wonderful. I think this session would gonna be wonderful today. So next question I'd like to know from you is what are the most important life lessons you have learned from your personal and professional life? ना वॉइस चली गई थी, अब ठीक है, दोबारा बोलेंगे प्लीज। You are getting my voice now? Now fine. So the thing which I'd like to know from you is what are the most important life lessons you have learned from your personal and professional life both? Personal and professional life. My learning. Yes. Right? My learning is to laugh in every situation. हम हर स्थिति में हंसना सीख जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि या तो हम अपनी लाइफ में करते हैं, हम आगे प्रेजेंट में या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। राइट। हम कभी भी प्रेजेंट स्टेट पे नहीं रहते। और सबसे जो इजी वे है, लोग इतना ध्यान करते हैं, इतना वो करते हैं, तब जाके वो प्रेजेंट स्टेट में आते हैं। सबसे इजी वे है, जब आप हंसते हैं तो आप प्रेजेंट स्टेट पे रहते हैं। हम हंसेंगे तो अभी हम प्रेजेंट स्टेट। तो हैप्पीनेस इज राइट नाउ। हैप्पीनेस इज राइट नाउ। हैप्पीनेस नहीं है हम ये कहें कि मेरे पास आईफोन आएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। राइट। और जैसे ही मेरे पास आईफोन 14 आया तो उसका नया वर्जन आ जाएगा, तो मैं सुनूंगा मेरे पास वो आएगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तो फर्स्ट लर्निंग है मेरी कि हैप्पीनेस इज राइट नाउ। Right. Wonderful thought. Because when we start to learn like being happy now, the thought of past and thought of future
would not affect us. राइट, Correct. क्योंकि पास्ट में भी आते हैं तो भी हमें दुख होता है, और प्रेजेंट फ्यूचर में भी आते हैं तो भी हमें दुख होता है। Right. तो प्रेजेंट में हमें रहना है। और True. लर्निंग तो बहुत हुई है, बहुत लर्निंग हुई है। जैसे मैं अभी एक आश्रम में गया था जहाँ पे सीनियर सिटीजन रहते हैं। Correct. ठीक है, जब आप उनके फेस में लाफ्टर देख लो, स्माइल देख लो, तो वो सबसे बड़ी लर्निंग है कि Correct. कभी भी आपको अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना है, उनके साथ रहना है। मेरे को इतने ऑफर आए बाहर के भी और यहाँ वहाँ के, मैं कभी नहीं गया। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही पूरा लाइफ में रहना चाहता हूँ, रह रहा हूँ। तो Wonderful. मेरा ये भी है कि जो मेरी लर्निंग है वो लोग भी इससे सीखें कि Correct. अपने पेरेंट्स के साथ रहें। कि आपको सब लोग धोखा दे देंगे, सब आपके बारे में नेगेटिव हो जाएंगे, पर पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपके बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। और कभी भी कितनी भी स्ट्रेस हो, मेरा Correct. सिंपल फॉर्मूला है, Correct. कितनी भी स्ट्रेस हो, कितना भी डिप्रेशन हो, आप शाम को घर जाओ, अपनी मम्मी के पास बैठो, अपने पापा के पास बैठो, उनको बता दो या हक कर लो, आपका सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन छू मंतर हो, आपको Right. कुछ करने की जरूरत Correct. Wonderful. Right. So moving on to the next one, like we were talking about stress, anxiety, tension, and these are common problem of everyone these days. I can say everyone these days, whether they are working or not, whether they are in entrepreneurial journey or an employee. So wherever they are, so these common problems are with everybody and affecting their life so badly and negatively. So why these kind of situations arising these days too much? आप देखेंगे आजकल हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या अपना फोन देखना स्टार्ट कर देते हैं, Correct. या हम रात भर वो OTP प्लेटफॉर्म में सीरीज देख रहे हो। तो ये सीरीज, ये जितनी भी नेगेटिविटी है, हम उसका इनटेक ले रहे हैं। Correct. Correct. ये हम ले रहे हैं। राइट, हम टीवी पे देख रहे हैं नेगेटिविटी, इतना वहां पर लड़ाई हो रही है, वर्ल्ड वार हो रहा है, ये हो रहा है। तो जितना ये नेगेटिव हम अपने इनपुट देंगे तो उतना ही आउटपुट नेगेटिव आएगा। तो सबसे बड़ा मेन जो आजकल है हमारा इनपुट, तो हमें अपना इनपुट चेक करना पड़ेगा कि हम क्या ले रहे हैं, हम Correct. क्या इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी हम 12-12, 14-14 घंटे अपना ऑफिस का भी देखते हैं, साथ में ये अपना व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मत देखो, बस सुबह सुबह उठकर 1 घंटा मत देखो। आप उस 1 घंटे में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ ध्यान की बातें करो, सत्संग की बातें करो, कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लो। आप 1 घंटा अपने ब्रेन को कुछ अच्छा दोगे तो अच्छा ही निकलेगा। राइट, तो पहली चीज हमें अपने थॉट को देखना है कि हमारे थॉट का इनपुट हम क्या इनटेक कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है हम क्या खा रहे हैं। आजकल हम इतना जंक फूड खा रहे हैं, आजकल हम नॉन वेज खा रहे हैं। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, नॉन वेज खा रहे हैं। तो नॉन वेज से भी हमारे जैसा खात अन्न वैसा हो तो मन, तो हमारा जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे मन पर इफेक्ट आते जाते हैं। तो आजकल हम रेडीमेड खाना खा रहे हैं, आजकल हम जंक फूड खा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे थॉट पे पड़ रहा है। तभी इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। हम लोगों से प्यार मांग रहे हैं, हम लोगों से प्यार मांग कि हमें प्यार करो, हमें प्यार देने वाला बनना है। Correct. When you start giving, you definitely would receive. जी, तो यही हमारे जो चीजें हैं जिन्हें हमें चेंज करना है, लाइफ में चेंज करना है। हमें अपने खाने का ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं और अपने ब्रेन को क्या दे रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वाटर। हम वाटर इनटेक कितना ले रहे हैं। हमें 7 से 8 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। ठीक है, और पानी जैसे आप पानी वैसी वाणी। आपने देखा होगा दिल्ली NCR की वाणी इतनी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो भी वाटर आता है उसमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव विचार होते हैं। तो उन विचारों को भी आप जब भी अपना पानी पिए तो एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव थॉट के साथ उस पानी को पिए। उस पानी में एक पॉजिटिव थॉट डालें कि ये पानी मेरी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ठीक करेगा। बस इतना सा एक पॉजिटिव थॉट के साथ उस पानी को ड्रिंक करेंगे। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट थिंग है। और आजकल जो अभी कोरोना हुआ है उसका काफी इम्पैक्ट आया लोगों की इस लाइफ में, जॉब पे, तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आया, जो स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ गया। फिर न्यूक्लियर फैमिलीज, आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट आया। पहले हम साथ में रहते थे, कंबाइंड फैमिली में रहते थे, तो अपने किसी भी बड़े भाई से बात कर ली, पापा से बात की, ताऊ से बात कर ली, तो हमारा स्ट्रेस वहीं रिलीज हुआ था। हमें वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी सही ज्ञान के लिए। Correct. क्योंकि when you speak more, your like stress, anxiety, tension would go out
more, like that will Currently? release from our body. Now these days we are not talking to people. Right, That is why तो we are हम holding things back. हाँ, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। Correct. आजकल हम मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे। अगर हमारे सर में दर्द है या हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। पर अगर हमें मेंटल हेल्थ में कुछ मेंटल थॉट में प्रोसेस आ रही है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो हम किसी की हेल्प लेने में हम डरते हैं। ठीक है, Correct. तो हमें ये स्टिग्मा भी हमें दूर करना पड़ेगा। हमें अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो हमें अपने फैमिली से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें, साइकियाट्रिस्ट से बात करें, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट से बात करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, किसी से ही Correct. बात करें, पर बात जरूर करें। Correct. Agree. This is really important. जी। So on to it further, like we were talking about like laughter therapy from the beginning. So on to it more. What exactly is like laughter therapy? How it works and how it like can help us to come out from these type of problems and make our life full of energy and positivity. You can first practically feel that, then you can find the solution of theoretically. So we can laugh for 2 seconds. Very good, very good. Yay! Yay. What is laughter yoga? What is laughter? Laughter yoga is a voluntary laughter where we can laugh without any reason, joke, humor. Just laugh for no reason. Right. Now I'm talking about scientific mechanism of action. Correct. How laughter yoga helps us. So when we laugh, we feel happy. Yes. True. And why we feel happy? Because our brain release happiness hormone that's called endorphin, right? And Correct. in laughter therapy, we cannot differentiate. Brain cannot differentiate. We can laugh naturally or artificially. Okay. Right? They can give both. They can release endorphin in both cases and release our stress, depression, and happiness. Correct. Got it. So like brain cannot like understand whether it is a genuine laugh or it is a fake one. Or fake laugh. But the positive outcome is whatever you are doing, for like natural one or the fake one, the kind of impact is both same on brain. Yes. Right. Wonderful. और हम नेचुरल हम हंस नहीं रहे आजकल। आपको देखा हो तो ना, हंसने में हम कंजूसी कर रहे हैं। Correct. तो एक आर्टिफिशियल वे में 10 से 15 मिनट जब हम हंसते हैं तो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। Right. That is awesome. So that is one aspect. ये साइंटिफिक वे हो गया। तो जब भी हम ग्रुप्स में लाफ्टर योगा सेशन करते हैं तो हम आई टू आई कनेक्ट करते हैं, हम हैंड टू हैंड होल्ड करते हैं, तो इसमें भी हमारे हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। Correct. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें बच्चे की तरह बन जाए। जैसे छोटा 5 साल का बच्चा होता है, हमें वैसे नेचुरल बन जाना। तो जैसे हम नेचुरल होते हैं वैसे ही हम हैप्पी हो जाते हैं और स्ट्रेस एंजाइटी से दूर हो जाते हैं। Yes, that is again a wonderful thought, because what happens is we are kind of holding us back from everything. So that is again problem. So if we start to accept things in a positive note, then definitely story would be different altogether. फोर्थ इम्पोर्टेंट थिंग है लाफ्टर डांस। हम कुछ डांस मूवमेंट करते हैं, लाफ्टर डांस, बॉलीवुड लाफ डांस, सिंगिंग, गिब्रिस आल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज। इसमें क्या करते हैं हम, आर्ट ऑफ नॉनसेंस। Okay. ठीक है, ये एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस है तो उसको क्विक रिलीफ मिल जाता है। तो 1 सेकंड का मैं आपको गिब्रिस का एक डेमो दूंगा। Sure, definitely. That would be helpful. कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो जैसे हम एक्सप्रेस नहीं करते, इमोशन हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस है तो आप इस गिब्रिस थेरेपी का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हैं और अपने एंगर को बाहर निकाल सकते हैं। Wonderful. So without speaking anything, you can show your anger, and in a way that you are mute, people would also like feel enjoyed. And the positive Art of nonsense. once they start to laugh, you would also get into a same note. You would also start laughing. Right. Wonderful. So this is really an amazing exercise to like practice when you are in anger. And apart from that, whatever you have shared about how laughter therapy can be useful in different
different situations and how we can start practicing them. That is really wonderful, and I definitely would love to start practice them in my day-to-day life. And I also urge people to, whosoever are watching this, should start using it in their life wherever, whenever they can. Maybe morning, evening, afternoon, whatever suits you, try it out. Wonderful. Right. So coming back to you again, are you an introvert or an extrovert kind of a person while facing your audience, and what are the pluses or minuses of the same? इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। जब मैं ऑफिस में होता हूँ या मैं किसी उसमें होता हूँ तो मैं इंट्रोवर्ट रहता हूँ। वर्क एनवायरनमेंट। तो मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ और थोड़ा सा कटा रहता हूँ कि जिससे मैं ये अपना जो एनर्जी है, अपना टाइम है, अपने इन सेशंस में दे सकूँ और अपने इन प्रैक्टिकल उसमें दे पाऊँ, अपने इन चीजों में दे पाऊँ। पर जब मैं अपने लाफ्टर योगा सेशन में या योगा सेशन में रहता हूँ तो मेरी एनर्जी अलग ही होती है। मैं 50,000 लोगों तक को करवा सकता हूँ लाफ्टर इकट्ठे। अभी कुछ साल हो गए, अब तो काफी साल हो गए, अभी कोरोना से पहले मैंने अपनी कंपनी के लिए जो रन हुई थी, एक मैराथन हुई थी, उसमें 5 से 6,000 लोग आए थे। वहां पे मैंने सेशन कराया। तो मुझे वैसे लोगों से अगर मैं सेशन करा रहा हूँ या वैसे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं जितने मर्जी से करा लो, आप इंडियन से करा लो, बाहर वालों से करा लो, और जिससे करवा लो, मैं कर सकता हूँ। तो वहां पे मैं एक एक्सट्रोवर्ट रहता हूँ और हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहता हूँ। एक्चुअली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। पर जब मैं वो पर्सनल लाइफ में रहता हूँ, अपने ऑफिस वाली लाइफ में रहता हूँ, तो मैं वहां पर मैं इंट्रोवर्ट पसंद करता हूँ। Because being active in your work, like you have to focus there itself, that is really important at that point in time. Right. Wonderful. So if I talk about the support you got in your journey, who all were the people supported you the most? First of all, my Guruji, who changed my life. My parents, पापा मम्मी, मतलब पापा मम्मी का तो ऐसा रहा है, मेरे बड़े भाई सारे, और कि मैं कुछ भी कर जाऊं लाइफ में, कुछ भी कर जाऊं, वो हमेशा मेरे साथ है। मैंने इतना उन्होंने मेरे को इतना झेला है। Agree. Every parent does. और अब वो इतना हैप्पी है मेरे साथ, मतलब अब दे फील हैप्पी एंड दे फील प्राउड। करेक्ट। और मेरे वाइफ, जिसको इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो मेरे साथ जुड़ी, और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और योगा एक्सपर्ट भी हैं, और 15 साल उनको भी जॉब करते हुए हो गए हैं इस फील्ड में, और मुझे 15 से ऊपर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया है। और मेरा जो बेटा है वो अभी 9-10 साल का है, 5th क्लास में पढ़ रहा है। वो मेरे को इनोवेशन देता है लाफ्टर थेरेपी में। उसकी जो हरकतें होती हैं वो मेरे को थॉट पे आती है, और मैं उससे नई थेरेपी को नया लाफ्टर योगा बना देता हूँ। जैसे वो टीटी खेल रहा है तो मैं टीटी लाफ्टर योगा, मैं कुछ भी वो कर रहा है तो मैं वहां से कनेक्ट करके उसको लाफ्टर थेरेपी में इन्वॉल्व कर लेता हूँ, और वो मेरे साथ इन्वॉल्व होता है, मेरे साथ कभी कभी सेशन करता है, एंजॉय करता है, मतलब हम काफी मस्ती करते हैं और कभी कभी लड़ाई भी करते हैं। Wonderful. That's great. तो ये मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। Right. So if I talk about motivation and inspiration in life, so how you get your motivation and inspiration? One example you have already shared, your son. So what are other things? दूसरे हमारे जो भी हमारे गुरुजी हैं, जो मेरे गुरुजी श्री रविशंकर जी हैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। उनकी मैं आई एम कनेक्ट डायरेक्टली, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हूँ उनसे। तो कुछ भी अगर मुझे लगता है तो मैं सब दे देता हूँ, लो जी संभाल लो। और मैं खूब मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, खूब देखता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ क्या कह रहे हैं, क्या नए प्रोसेसेस आ रहे हैं मार्केट में, क्या से हम किस तरीके से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मैं को देखता हूँ क्या नई थेरेपीज आ रही हैं। तो जैसे मैंने अभी एक नई थेरेपी मैंने इन्वॉल्व करी, लाफ्टर साउंड थेरेपी। ये डिफरेंट है, ये पूरे वर्ल्ड में अभी कोई नहीं करा रहा, मतलब करा भी रहा हो तो मुझे नहीं पता। तो मैं कहता हूँ साउंड थेरेपी, आपने देखा वो स्टार्टिंग में, तो इसमें मैं लाफ्टर के साथ लाफ्टर साउंड थेरेपी मेडिटेशन कराता हूँ। पहले लोगों को हंसाता हूँ, फिर इस साउंड थेरेपी के थ्रू मेडिटेट करके उनको कूल एंड काउंट करता हूँ। Correct. So it connects your laughter with the spirituality. Right. The kind of feeling and the kind of connection. हा से लेकर हरी तक पहुंच जाना है हमें। Correct. Nice thought. So if I talk about your take on success, what do you think success is to you? Success मेरे लिए, जब मैं सामने वाले, जो भी मेरे सामने, जैसे अभी आप मेरे सामने, आपके फेस में मैं स्माइल देख लेता हूँ, आपका मैंने जो आपने खुद देखा हुआ कि आपने वो टाइम आपको पता नहीं लगा, तो आप कहीं ना कहीं मेरे साथ कनेक्ट हो गए। जब सामने वाला बंदा मेरे साथ कनेक्ट हो जाता है हार्ट टू हार्ट, तो वो मेरे लिए प्योर सक्सेस है। जब मैं कॉर्पोरेट में करा रहा हूँ और सबसे ज्यादा जो CEO लेवल के
के या जो हाई मैनेजर लेवल के Correct. बंदे मेरे साथ हंस रहे हैं और स्ट्रेस से दूर हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। अगर मैं किसी एनजीओ में जाके किसी पेरेंट्स की फेस में जो स्माइल ले आता हूँ, वो मेरे लिए एक्चुअल सक्सेस है। Correct. देखो, पैसे भी कमाना एक सक्सेस है, वो नहीं कह रहा कि वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, वो भी That सक्सेस is है। also पर important. जो Correct. हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर जो हार्ट से जो खुशी मिलती है, वो हार्ट से मिलती है, तो वो Correct. भी एक सक्सेस है। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, पैसा भी और सामने वाले की खुशी। तो पहले मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सामने वाले की खुशी है, जो मैं दूसरों की फेस में स्माइल देता हूँ। Wonderful. Really a wonderful thought. So now we are moving on to the last question. Any message, advice you would like to share with our viewers and listeners? मेरा बस एक ही मैसेज है, कम से कम 10 से 15 मिनट रोज हंसे। Right. और उसमें प्लस आपको करना है तो अपने पेरेंट्स के साथ हंसे, अपने पेरेंट्स को ले ले साथ में, ठीक है? Correct. अपनी फैमिली को ले ले साथ में, वाइफ को ले ले, बच्चों को ले ले, हम साथ में कंबाइन होके हंसेंगे तो घर का ऑरा भी बढ़ेगा, घर की क्लीननेस भी होगी, घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके घर में जितने भी दुख दर्द हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो Right. 10 से 15 मिनट रोज हंसे, यही मेरा वो है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अपने लिए हंसे, अपने पेरेंट्स के लिए हंसे, तो हंसना जरूरी है। तो आज एक संकल्प लेंगे, आज एक प्रॉमिस लेंगे मेरे साथ कि आप 10 से 15 मिनट रोज हंसेंगे। अगर आपके Wonderful. पेरेंट्स दूर रहते हैं तो उनके फोन में हंसे, फोन करके हंसे उनके साथ, तो उनका भी एक आप देखेंगे उनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, Correct. कितने That अच्छे will उनकी add लाइफ positivity. Definitely. लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ हंसे, तो यही एक मेरा मैसेज है, कीप लाफिंग, बी हेल्थी। Right. And not only this would help you to stress out your tension and energy, like tension, anxiety, stress, but it will also help you to build better relationship with your family members. This is Right. really important because when you start practicing this with your family member, the kind of bond and connect would be stronger, would be better, and the communication would also be better. So this is really important and helpful. So everybody must start practicing this, and definitely your website, your like social media links would be having multiple like videos onto it, and I would also download some of them and start seeing them on, and also share with our few friends and colleagues as well. So I must say it was amazing having you on my platform, and I was really like enjoying whatever you were saying, whatever you were doing, and I really enjoyed this session to the core of my heart. It was really amazing hearing you, having you here, and I enjoyed this conversation. Looking forward to hear more from you again soon, maybe on some other topic or same topic further. Thank you so much, Dr. Rawat, for your time, and I really enjoyed this session, and love to have you again soon. Thank you, thank you, buddy. Thank you. Thanks a Also, lot. I would share your website and social media link with our video so that people can be in touch with you, take your helps, take your sessions, take your guidance, Right. and start taking your start practicing whatever you are teaching. So to help them, this will be really wonderful thing. So guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of valuable information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a good time. Thank you and bye bye.